Pranam. Today I am at Panna, Mahamati Prannath Vidyapith, Rajapur, Patna. Mahant Suresh Chandra Shastri Maharaj ji requested me to talk something about Swami Prannath ji. So I am very briefly giving some introduction to Swami Prannath ji. Swami Prannath was born in Bikram Sambat 1775, the present time city called Jamnagar. He is not a person, just a person like we are, but he is a pure soul that came from Paramdham, the holy abode of Raji, Shamaji, Sri Krishna. So Prannath was born on this earth with a great mission that was appointed by Sri Raji himself through Sadguru Maharaj. Sri Raji resided in the heart of Sadguru Maharaj, and Sadguru Maharaj resided in the heart of Swami Prannath ji. So we, Pranami community, worship Prannath ji like pure soul, like Sri Krishna himself, and Aksharatit Sri Krishna, Raji, Shamaji. So he is a kind of incarnation of Raji, Shamaji themselves. So what was the mission of Prannath ji that was assigned by Sri Raji Shamaji is that the fallen souls who have come from Paramdham to see the drama of this earth, drama in this world, they were lost here in the Maya, in the labyrinth of Maya, in the wave of Maya. They were lost. They are lost, still lost. And Prannath ji was sent to take them, to make them aware of their real existence, and then to take them, their soul, to liberate their soul from the wave of Maya, and then take them to Prannath, take them to Paramdham, the holy abode of Sri Raji Shamaji. That was the pure mission of Prannath ji. Prannath ji was a great saint of Pranami community, and he has given us the holy scripture that is called Tartam Bani, more than 18,000 slokas or chaupais in Tartam Bani. That is Pranami community's major holy scripture, and in that scripture he has given some principles, some philosophies, some theories, the path, the bhakti path to liberate the great soul and to take them away from here to their real abode, real existence, Paramdham, apna ghar, mool ghar, that is called mool ghar. And the Pranami community, by following Prannath ji's principles and philosophies, they think that they will be liberated from this earth, from the world of Maya. And then next thing what Prannath ji did was that inclusiveness, that is called Samanvaya Bad, Sarva Dharma Samanvaya, that is inclusiveness. Sarva Dharma Samanvaya means सभी धर्मों में एक ही भावना है, एक ही तत्व है, जो मूल तत्व है परमात्मा, जो हमारा स्वामी है, जो हमारा धनी है, जो हमारा पति है. सभी धर्मों में वही भावना है. लेकिन कुछ लोग वो मूल तत्व को पहचानने से गलती कर रहे हैं और पहचान नहीं पा रहे हैं, इसीलिए
विभिन्न मार्ग अपना रहे हैं। तो स्वामी प्राणनाथ जी ने क्या किया, सभी धर्मों को ये संदेश दिया है कि हमारा मूल धनी एक ही है, उसी के यहाँ हम लोग पहुंचना है, और यहाँ से हम लोग जब ये माया का जंजाल तोड़ के हम जब सिधारेंगे, हमको वहीं अपना मूल घर में जाना है। इसीलिए हमारा ये प्रणामी धर्म भी सभी धर्म, सनातन धर्म में सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म प्राणनाथ जी ने सिद्ध किया है। अब ये छोटे से मेरे प्रवचन में मैं बहुत सी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा ही मैं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं एक दो बात और कहना चाहता हूं। प्राणनाथ जी ने ये सर्वधर्म समन्वय का भावना ये किया, और प्रणामी धर्म का मूल तत्व है भक्ति। भक्ति से ही मुक्ति होगा। अब मुक्ति का भी विभिन्न आदमी विभिन्न व्याख्या करते हैं। हम लोग वो ब्रह्मवादी लोग, जो ज्ञानवादी लोग हैं, उन लोग का मुक्ति और हमारा मुक्ति फर्क है। प्रणामी धर्म में अपना अस्तित्व, हमारा जो सोल है, हमारा आत्मा है, इसका अस्तित्व नष्ट नहीं होगा। ये परम धाम में परमात्मा के समक्ष अपना अस्तित्व बाकी रखता है। और ज्ञान मार्ग के लोग, जो ज्ञानमार्गी लोग हैं, जो मोक्ष की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, ब्रह्म प्राप्ति की बात करते हैं, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के बाद उनका अस्तित्व विलीन हो जाता है, ब्रह्म में मिल जाता है, वो घुल जाता है, उसका अपना अस्तित्व नहीं रहता है। लेकिन हमारा प्रणामी धर्म का ये भक्ति मार्ग अपना अस्तित्व कायम रखते हुए परमात्मा के सानिध्य में हर हमेशा आनंद ही आनंद में रमने के लिए हम लोग परम धाम में हम लोग उस तरह से रहते हैं। इसीलिए हमारा अस्तित्व सदा सर्वदा हमेशा परमात्मा के चरण में, परमात्मा की सेवा में लगा रहता है, परमात्मा की प्रेम में लगा रहता है। ये इतना अच्छा ये वातावरण बनेगा परम धाम में कि दिन प्रतिदिन ये प्रेम भाव परमात्मा के प्रति, राज्य के प्रति बढ़ते जाएगा। ये ऐसा चीज है, जितना खर्च करो उतना बढ़ते जाएगा। और अब इस छोटे से 5-7 मिनट के इस दौरान में मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर मौका मिला तो मैं बात करूंगा। मैं कमल कृष्ण खनाल, मैं नेपाल से हूं, और मैं त्रिभुवन विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य का प्राध्यापक हूं। और मौका से चांस बस मौका से मैं पटना में आया, और महामती प्राणनाथ जी विद्यापीठ राजापुर में शास्त्री जी महंत सुरेश चंद्र शास्त्री महाराज जी हैं, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने अनुरोध किया कि आप वहां से आए हैं, प्रोफेसर हैं, तो कुछ 2 शब्द प्राणनाथ जी के बारे में बोल दीजिए। इसलिए मैं अभी इतना ही बोल के अपना वाणी विराम देता हूँ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय।